चांद समज गाड़ी हाकु ಶಿವಾಜಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಶಿವಾಜಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ರೋಡ್ ಶೋ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲು ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌಹರಾ ಶೇಖ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಸೈಯದ್ ಜಾಫರ್. ಸ್ವತಃ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ರ್ಯಾಲಿಯ ಮತ್ತು ಈ ರೋಡ್ ಶೋನ ವಿಶೇಷತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ರೋಡ್ ಶೋ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರಾದ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸುಹೇಲ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌಹರಾ ಶೇಖ್ ಅವರು ಕೂಡ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ರೋಡ್ ಶೋ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಲಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೈಯದ್ ಜಾಫರ್ ಅವರು ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ವಜ್ರ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌಹರಾ ಶೇಖ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ರೋಡ್ ಶೋ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಈ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಂಇಪಿ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಸೈಯದ್ ಜಾಫರ್ ಅವರು. ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ವಜ್ರ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾರಾ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮತವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಮತಯಾಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ರ್ಯಾಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ರ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಶೋ ಇದೀಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವತಃ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌಹರಾ ಶೇಖ್ ಅವರು ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತಯಾಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಈ ದಿನವೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮತವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಸೈಯದ್ ಜಾಫರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮತವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಮತಯಾಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ವಜ್ರ ಆಗಿದೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ. ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂಇಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೈಯದ್ ಜಾಫರ್ ಅವರು. ಅವರ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 9 ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಸೈಯದ್ ಜಾಫರ್. ಅವರು ಸ್ವತಃ
ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮತಯಾಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ನಟರಾದ ಸುಹೇಲ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಇಪಿ ರ್ಯಾಲಿ ಇದೀಗ ಶುರುವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌಹರಾ ಶೇಖ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. दोस्तों, मैं सैयद जाफर शिवाजी नगर से एमपी का कैंडिडेट हूँ। दोस्तों, शिवाजी नगर के हालात के हिसाब से कोई ना कोई तो आगे बढ़कर आना चाहिए था। दोस्तों, मुझे अल्लाह ने एक मौका दिया है। आप सब मिलकर एक होकर एमपी को वोट देंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। और शिवाजी नगर के अंदर जो जो जरूरतों को पूरा करना है, मैं यहाँ की जरूरतों को अच्छी तरह से जानता हूँ। दोस्तों, मुझे वोट देकर आप कामयाब बनाइए। शिवाजी नगर और मेरे घर के हालातों को मैं ही जानता हूँ। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह यहाँ की बहुत सारी जरूरतों को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने मुझे यहाँ की टिकट देकर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, आप सब मिलकर एक नई सोच को इधर लाइए। दोस्तों, अगर मुझे यहाँ पर मौका मिला तो मुझे मालूम है यहाँ की जरूरतों को क्या क्या करना है। बेरोजगारी है दोस्तों, डेवलपमेंट के नाम पर जो रोजी को छीनकर बेरोजगार बनाया जा रहा है, इस पर मुझे काम करना है। यहाँ के हालात पर काम करना है, गरीबों के लिए कुछ काम करना है। दोस्तों, मेहरबानी कर एमईपी को वोट देकर जिताइए। बोलो जाफर भाई के, जाफर भाई के, बोलो मैडम नौहरा शेख के, वोट फॉर जीतेगा वो जीतेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी हो रही है कि शिवाजी नगर कासकोटी में हमारी रैली
मिस्टर जाफर भाई जो है यहाँ के हमारे कैंडिडेट हैं और आप सब उन्हें सपोर्ट करें और आपके वोट का हक और आपके वोट का अधिकार आप ले। काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि देश के कुछ नेता, उनको हमने रजिस्टर कर दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई है तो वही रहे, देश में अगर कोई कुर्सी पे है तो वही रहे। मेरे भाइयों और बहनों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है हर एक को देश चलाने का अधिकार है। हर एक को जो हिम्मत रखता है इंसाफ की लड़ाई करने का अधिकार है। हर एक को लोगों के लिए इंसाफ करने का अधिकार है। यही हमारी पार्टी का मकसद है। एमईपी ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, इसका स्लोगन है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। ये पार्टी लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी रहेगी। ये पार्टी पार्टियों पे चैलेंज नहीं करेगी। ये पार्टी देश के मुद्दों पे चैलेंज करेगी कि देश में किस तरह हमको रहना है और हमारा देश किस तरह से आज कम्युनल बनता जा रहा है और हमारे देश में पार्टियों का नाम लेकर कितना लोगों को लड़ाते हैं, कितना लोगों को बहकाते हैं। तो इसलिए ये पार्टी का मकसद होगा कि हम भारतीय सब एक होकर एक ताकत बनकर, हाँ, वोटों में, इलेक्शन में जिसको जीतना है वो उसका अधिकार है, वो जीत सकते हैं, उसमें कोई भी नहीं रोक सकता। जब वोट डालने के लिए आप बूथ में जाते हैं, वहां पर बिल्कुल आप अकेले होते ही, कोई तुम्हें वहां जुल्म नहीं कर सकता कि तुम इसको वोट डालो, तुम उसको वोट डालो। तुम अपनी आजादी से वोट दे सकते हो और सोच समझकर वोट दे सकते हो। भारत में आजादी मिलकर 70 साल हो गया है। हमें क्या मिला है? आज तक जो हमारे पूर हाउसेस हैं वो वैसे ही है। आज तक जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो वैसे ही है, जो गरीबी है वो वैसी ही है। मगर है क्यों कि जो बजट पास होते हैं वो बजट को गरीबों तक नहीं पहुंचाया जाता है। वो बजट सिर्फ टेबलों पर, नेताओं की टेबलों पे वो बजट खत्म हो जाता है और पेपरों पे कायम रह जाता है। मगर आप सब आंख खोलेंगे, अगर आप सब जागेंगे तो हम भारत को एक बहुत अच्छा भारत बना सकते हैं। कर्नाटका को एक बहुत अच्छा कर्नाटका बना सकते हैं। देखिए आपके रास्तों की तरफ, आपके गलियों की तरफ ये किस तरह से गंदे और कचरे, यहाँ पर सरकार कोई नजर नहीं करती है। मगर आप जाके पीडीएफ बजट फाइल आप देखेंगे तो आपके लिए करोड़ों का बजट इधर बता देते हैं कि शिवाजी नगर में इतने करोड़ का बजट हो गया, मगर वो तुम तक नहीं पहुंचता है। तो हमारी ख्वाहिश है कि अच्छे नेताओं को आप चॉइस करें, अच्छे नेताओं को वोट करें और ये ना देखे कि वो बिलियनर है, मिलियनर है, ये देखे कि वो इंसाफ करने वाला है। उसी तरह से एमईपी ने इंसाफ के साथ टिकट, जो लोग सोशल वर्कर हैं, जो लोग कौम की खिदमत करना चाहते हैं, जो लोग आगे आएंगे, उनको टिकट दी है। मेरे भाइयों और बहनों, हम ये समझते हैं कि सियासत सिर्फ या तो कांग्रेस का हक है, सियासत या तो बीजेपी का हक है। हम एक नई सोच लाना नहीं चाहते और हम सोचते हैं कि जैसे देश उनको रजिस्टर करके दे दिए ही, अब उसमें जो नेता बैठे हुए हैं वो भी सोचते हैं कि देश हमारा है, वोट हमारा है, गलियां हमारे ही। मगर सच में जाएंगे तो वोट किसी का भी नहीं है, देश किसी का भी नहीं है। तुम जिसको चुनते हो देश उसका है, तुम जिसको वोट देते हो गली उसकी है, तुम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को सेलेक्ट करते हो उसका हो सकता है। तो अधिकार आपके हाथों में है, अधिकार आपके हाथों में है, जस्टिस आपके हाथों में है, इंसाफ आपके हाथों में है। आप अगर इंसाफ की तरफ आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्द हम देश को जो है भलाई कर सकते हैं। आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़के हमको रात दिन झगड़े कराते हैं। 5 साल तक सिर्फ एक वोट के लिए 5 साल तक लड़ाई कराते हैं। हम सब एक बनकर हम बताना है कि हम भारतीय है,
हम सबको अधिकार है, कोई एक ही अधिकार नहीं बल्कि भारत के हर इंसान को अधिकार है भारत में जीने का, भारत के हर इंसान को अधिकार है एमएलए बनने का, भारत के हर इंसान को अधिकार है प्राइम मिनिस्टर बनने का। तो आप सोचिए कि आप सब आगे बढ़कर जो है इस काम में आगे बढ़कर इंसाफ के लिए आप साथ देने की कोशिश करिए। और एमपी ये पार्टी जब रूलिंग में आएगी तो मैनिफेस्टो में सबसे ज्यादा जो गरीब लोग हैं उनका सबसे पहले ध्यान रखेगी, उनके लिए ख्याल रखेगी और उनके लिए काम करेगी, और वो भी और इंसानियत के साथ काम करेगी। हर एक को सही अधिकार मिलेगा। और आप बताओ, आप बहुत बड़े काम कर सकते हो, ये मत सोचो कि हमारा कुछ भी अधिकार नहीं है, अब चिट्ठियां लेना छोड़ दो, अब डरना छोड़ दो, हिम्मत में आ जाओ आप भी कि भारत में हमको भी जो सबको अधिकार है वो अधिकार है। ये हिम्मत में आने के लिए, आप सबको बताने के लिए मैं ये पार्टी को लॉन्च की हूँ और नेशनल पार्टी बनाकर लोकसभा तक कंटेस्ट करने का इरादा की हूँ। और बेंगलुरु में हम 224 सीट्स पर कंटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो आप इस चीज को छोड़ दो कि हम ये काम नहीं कर सकते, वो उनके ही हाथों से होगा, तो जरूर जो है तुम्हारी इंसाफ होगी। आप सबको पता है क्या जुल्में होते ही, आप सबको पता है किस नजर से आज माइनॉरिटीज को देखा जाता है, आप सबको पता है, आपको सिखा दिया गया है कि आप सियासत में नहीं आ सकते, आप सीट पर नहीं आ सकते, सीट पर तो हम गुंडे ही बैठेंगे, सीट पर तो हम लैंड ग्रापर ही बैठेंगे, आप लोग सीट पर नहीं आ सकते। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि सीट पर आप सबको बैठने का अधिकार है, मगर उसके लिए तैयार हो जाओ। हम ना बीजेपी पे लड़ेंगे, ना हम कांग्रेस पे लड़ेंगे, हम ना इंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। और हम चाहेंगे कि दुनिया की इंसानियत को, भारत की इंसानियत को एक इंसान बना देना चाहिए। और हम सबको चाहिए कि एक इंसाफ के लिए उठकर खड़े हो जाएं और लड़ें और भारत को बताएं, सब लोगों को बताएं कि भारत में हर इंसान को अधिकार है, वो अधिकार को लेने के लिए आगे आ जाए। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ। जा रहे उधर रे, तुझे सीट उधर है। अभी भी वो गोल्ड है मेरा, जरा छोड़ मेरा पैसा। उसका बाद में मेरा पास 60,000 रुपया था और 6,000 रुपया 6,000 और 5,000 निकाला, 70,000 रुपया गाड़ी उसको पैसा देंगे दिया। और हम सबको जो है जब अधिकार है तो हम सब आगे बढ़े और भारत के इंसाफ के लिए और लोगों के इंसाफ के लिए आप गरीबों की आवाज बन जाएं, आप औरतों की आवाज बन जाएं। आप जो है आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं और आप चाहे तो भारत में हम एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं और कर्नाटका में हम एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। तो कर्नाटका एमईपी महिला एम्पावरमेंट पार्टी की शुरुआत है, मगर ये पार्टी टोटल लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट करके दिल्ली तक जाके जो लोगों पे जुल्म हुआ है, जो लोग जुल्मों के नीचे दबे हुए हैं, जो आर्डर हमारे पास नहीं हुए ही, वो सब पास कराने की कोशिश करेगी। इंसानों की इंसाफ के लिए, इंसानों की मदद के लिए ये पार्टी आई है। ये पार्टी किसी मकसद को लेकर नहीं आई है, ना ये पार्टी किसी को तोड़ने के लिए आई है, ना ये पार्टी किसी को जोड़ने के लिए आई है। ये पार्टी सिर्फ इंसानियत को जोड़ने के लिए आई है, इंसानियत को बताने के लिए आई है कि इंसाफ के इंसान के लिए, इंसाफ के लिए ये पार्टी आई है। तो मैं सारे भाइयों और बहनों से यही गुजारिश करूंगी कि आप डरना, चिट्ठियां लेना छोड़ दें और अपने अधिकार के लिए उठकर खड़े हो जाएं और अपने अधिकार के लिए खुद लड़ने वाले बन जाएं। यदि आपको अधिकार नहीं मिलेगा, नहीं तो भारत में आप सबसे ज्यादा नाइंसाफी पाने वाले हो जाएंगे और सबसे ज्यादा नाइंसाफी करने वाले हो जाएंगे। तो इसलिए खास करके ये पार्टी का मकसद ये है कि इंसानियत को योग बनाना।
इंसानियत को एक बनाना, और जो लोग कम्युनल होते जाते हैं उन कम्युनल को भी सिखाना। जहां भारत आता है तो भारत में हम सब एक हैं, हम सब एक बनकर जो है भारत में काम कर सकते हैं। और एक पार्टी ऐसी होना चाहिए जो लोगों के इंसाफ के लिए खड़ी हो जाए और लोगों के अधिकार के लिए खड़ी हो जाए और जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए खड़ी हो जाए। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों के स्कूल ठीक हो जाए और हमारे बच्चों को LKG से लेकर PG तक फ्री एजुकेशन हो और उनको सरकार की वो जिम्मेदारी हो, और हमारे बच्चों के कॉलेजेस और हमारे बच्चों के पढ़ाई ये सब कुछ भी जो है सही अधिकार से हमको मिले, हमारे औरतों को हुकूक मिले। ये सब औरतों को पूरा दबा के रख दिया गया है कि औरत कुछ नहीं कर सकती। आप तारीख उठा के देखिए कि औरत सब कुछ कर सकती है। औरत के अंदर अल्लाह ने वो चीज रखी है तो वो सब कुछ भी कर सकती है। आज हम सिर्फ लड़ाई में गुजार देते हैं कि बीजेपी ने क्या किया है, कांग्रेस ने क्या किया है, वो नेता ये नेता को गाली दे रहा है, वो नेता ये नेता को गाली दे रहे हैं। ये सब कुछ छोड़कर हम अपने भारत के मुद्दों को, अपने घरों के मुद्दों को, अपने गली के मुद्दों को हम बात करते हुए जो है जरूर से जरूर जो है ये करना है इंसाफ के लिए। आप सबका सपोर्ट देखकर बहुत खुशी हो रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सिराज भाई को और दरमियान को, हीरे को वोट देकर आप एक नया इंकलाब लाने के लिए पहला कदम बन सैयद जाफर भाई को वोट देकर आप एक नया इंकलाब लाने के लिए कामयाब बनोगे। नंबर 9 सीरियल है और आप नंबर 9 को वोट देकर जो है कामयाब करोगे और अपने हालात को सुधारने के लिए आप खुद आगे बढ़ोगे। आप ही जिम्मेदार है अपने हालात को सुधारने के लिए। और मैं ज्यादा वादे करना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे लिए काम करके बताना चाहती हूँ। जितने भी लोगों ने रैली में सपोर्ट किया है मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका। ಶಿವಾಜಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ರೋಡ್ ಶೋ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾಫರ್ ಅವರ ಪರ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲು ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌಹರಾ ಶೇಖ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಾಫರ್ ಅವರ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 9 ಜೊತೆಗೆ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ವಜ್ರ, ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ರ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಶೋ ಇವತ್ತು ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲುಪಿದೆ. ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮತವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌಹರಾ ಶೇಖ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ऐसा चाको वापस आना, चलो।
नहीं होता बराबर है टाइम बराबर, ऐसा चलो। नहीं ऐसा चलो, परमिशन है, ऐसा चलो। है 7:30 बजे तक टाइम है। ऐसा चलो, ऐसा चलो। क्यों ऐसा कर रहे तुम? नहीं होता जगह, चलो ऐसा गाड़ी आती नहीं। पार्किंग इमरान भाई, पार्किंग को थोड़ा मेंटेन करो। हतो बरकत क्या क्यों वाले ट्राफिक को सर ವಾಹನದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಎಂಇಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಡಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಬೇಡಿ ಯಾರು. ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ. ವಾಹನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಎಂಇಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ, ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಬೇಡಿ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ, ದಯವಿಟ್ಟು. ವಾಹನದ ಚಾಲಕರಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ, ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಬೇಡಿ. ರ್ಯಾಲಿ ಟ್ರಕ್ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಾಲಕರು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ, ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಬೇಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಂಇಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಷ್ಟೇ, ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ. ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ, ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಬೇಡಿ.
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ. ವಾಹನ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಬೇಗ. ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ. ನಿಂತಲೇ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು, ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ವಾಹನ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಎಂಬಿಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ, ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಬೇಡಿ. ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ವಾಹನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಎಂಬಿಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ. हेलो हेलो मार्केट आराम से टर्न कर रहे हो।
ಎಂಎಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂಬೇಡಿ, ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ हुकूमत करता ಮುಂದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಡೆ ಸಾಗಿ. ಎಂಎಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಂತಲೇ ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ. ಯಾರು ಯೂಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗಿ. ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರೋಡ್ಗೆ ರ್ಯಾಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಯೂಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ. ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಾಹನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರೋರು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಬೇಡಿ. ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರೋಡ್ಗೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ. ವಾಹನದ ಚಾಲಕರು ಬೇಗ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ, ನಿಲ್ಬೇಡಿ. ವಾಹನದ ಚಾಲಕರು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಒನ್ ವೇ ಇದು. ನಿಮ್ಮ
ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒನ್ ವೇ ಇದು. ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ವಾಹನದ ಚಾಲಕರು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಗಾಡಿನ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಮುಂದೆ ಲೆಫ್ಟ್. इधर आ जाओ।